So now we have to do exercise number C, right? We have to start from exercise number C, right? So in exercise number C, you have to write whether the adjectives given in the color in the following sentences are your attributive or they are predicative, right? So I'm writing over here the answers. You please copy them, right? Okay. The first one is the lazy students could not pass in the examination. The lazy. See, I'm writing the whole line for you. Okay. If somebody is not having books, so at least he or she can see from the board and understand, right? Okay. Okay. The lazy students could not pass in examination. Answer is attributive. Right? The lazy students could not pass in the examination. Right? Please note it down, everyone. Second one, her voice is very sweet. Okay. Answer is predicative. Right? Yes. Yes. So note down. Shall we move to the next? Okay. Now the third one. The tricolor is our national flag. Right? So the answer is
distributive. Fourth one, every nation has its own flag, right? Distributive, right? Next, fifth one, my uncle is a great football enthusiast, right? Answer is right, right? Note it down. Yes. Okay. Done, everyone. Aarti, Ayush, Anish, Aryan, Bhavya, Gumesh, Kushal, Lipika, Nakul, Navya, Prateek, Sandeep, Sejal, Uday, everyone. All 14 of you done it? Okay. We move to next. Sixth one. That is, it was a horrible experience. Seventh, I am slim and healthy. Eighth one was a very compassionate human being.
Done. I will rub it. Let everybody do it first. Kushal. Okay. So now 9th one. I have many friends. And 10th is the gold ring is very expensive. That is predicate. Now you can hear me. Am I audible now to all of you? You can see the board. Okay. Done. Okay. So this completes your two chapters. That is
your chapter number 15 and 16. Page number 61, you have to do it on your own. Nothing is there. You just have to fill the blanks with the possessive adjective, that is his, her, and their. Three are given to you: his, her, and their. Right? So you have to do it on your own. It is very simple. You can do that. Right? No issue. Clear to everyone? Okay. So now we will continue with our topic that we were discussing on that day. That is the article. Right? That is the chapter number 17 we were doing. Right? So you might have forgotten, or I'll just give you a quick recap of it. बी का 10th वाला करवाया तो था बेटा मैंने. 10th है इंट्रोगेटिव. 10th वन इज इंट्रोगेटिव. जिसने नहीं लिखा है लिख लो उसको. राइट. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द आर्टिकल. उस दिन मैंने आर्टिकल के बारे में आपको दो चीजें बताई थी कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल वो हो गया जब वर्ड द पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जब हम द लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं. वी आर पॉइंटिंग आउट. राइट. व्हेन वी आर पुटिंग द मीन्स ओवर हियर इज वी आर पॉइंटिंग आउट सम पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. क्या पर्टिकुलर? या तो पर्टिकुलर पर्सन या थिंग. ठीक है. तो हम दो चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज थिंग और पर्सन. राइट. जब हम बात कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल की. ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द वर्ड व्हेन the point out some particular person or thing, so that comes under your definite article. और मैंने इसके आपको एग्जांपल्स भी दिए थे जो मैं फिर से बता रही हूँ. एक मैंने आपको जैसे मैंने दिया द सन मैंने दिया, दैट मीन्स इट इज पर्टिकुलर. वी आर पॉइंटिंग आउट समथिंग, द सन. ओके. या हिमालय, मून, means we are talking about some particular thing. Right. The Himalayas, if we talk about the moon, we talk about the sun, we talk about it is particular we are talking about. So we are telling we will, these type of example will come in your definite article. Right. Understood everyone? Understood? Okay. Now one more thing it is given. वह आर्टिकल में अभी जो दो बातें दो चीजों में डिफाइन करा है, एक हो गया हमारा, मैं आपको ऐसे इसके थ्रू से मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ. जैसे मैंने लिखा है आर्टिकल, तो आर्टिकल में एक हो गया हमारे डेफिनेट और एक हो गया हमारा इनडेफिनेट. राइट. वन इज आर डेफिनेट एंड अनदर इज इनडेफिनेट. Right. So this is for specially written for the okay. Definite is defining with the means when talking about particular pointing out what person
or thing, right? And when we talk about indefinite, right, it is being denoted with the word a, right? That is a or an, right? Two is defined, that is definite. दो define कर रहा है a और an. Okay, leaves indefinite the person or thing spoken of. Okay, that is come under your indefinite article. Means if I say she consulted a doctor, ओके, तो अ डॉक्टर जब हम लगा रहे हैं तो वो एक डेफिनेट आर्टिकल हो गया। क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर डॉक्टर, दैट मीन्स इट मे बी अ फिजिशियन, अ गायकोलॉजिस्ट, वट एवर इट इज। तो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो गई, पर्टिकुलर डॉक्टर का हमने डिफाइन कर दिया कि ये वो डॉक्टर है जिसको हमने दिखाया था, दैट पर्टिकुलर डॉक्टर, राइट। बट इनडेफिनेटली अगर हम उसको लिखेंगे सेंटेंस में तो वो कैसे हो जाएगा? शी कंसल्टेड सॉरी शी कंसल्टेड द डॉक्टर। द मीन्स, वी मीन्स दैट इट इज, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट डॉक्टर। हम उस डॉक्टर के लिए पर्टिकुलर नहीं है वो कौन सा डॉक्टर है। हमें ये पता है कि उसने डॉक्टर को दिखाया है, शी हैज कंसल्टेड अ डॉक्टर, बट वी आर नॉट श्योर ऑफ विच डॉक्टर दे आर टॉकिंग अबाउट। Means you are not having any surety, you are not particular about the thing. At that time you will say it is an indefinite article, and when you are particular, you are sure about the thing, you will put the pointing out some person or thing that will come under your definite article. And indefinite article, when you will write a or an, and you are not sure of any of the person you are talking about, you have no idea of that. Okay, you are being you have been not given a particular pointing thing is not provided to you, you are not sure about the thing. At that time you will use a or an in, and that is told sorry, that is known to be your indefinite article, right? I hope class this is clear to you today, what we have talked about the definite and indefinite, the difference between the both. You have understood, all of you? Kushal, Anish, Priyanshi, Navya, both the Navya, clear to everyone? Deepika, Kushal, clear with everyone? Okay, so in next class we'll continue with the article part. Okay, उसमें अलग अलग कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कैसे वो डिवाइडेड होता है, हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? Okay, bye all of you and take care. We'll continue with our next class. Okay, bye all of you.
Good morning, students. How are you? Good morning, students. Yes, students. Take out lesson number 12. Take out lesson number 12. बच्चों लेसन नंबर कौन सा चल रहा है अपना? लेसन 12 चल रहा है और ये अपना लगभग हाफ कंप्लीट हो चुका है। पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद में फिनिश करेंगे। ओके, फर्स्ट वी विल रिकॉल दिस चैप्टर। Yes, clinical thermometer. स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। ओके, तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो फीवर का जो मेजरमेंट है उसको मेजरमेंट में यूज होता है। आपने देखा होगा बुखार वगैरह हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो डॉक्टर्स या फिर अपने जो घर पर भी रहता है थर्मामीटर, तो उससे क्या करते हैं, उसको नापा जाता है कि इसे कितना बुखार है, कितना इसको फीवर है, कितना सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में है। ओके, तो ये एक डिवाइस रहता है जिससे कि जो फीवर है या अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेजर किया जाता है। ओके, ये अपना क्या एंशियंट टाइम में ऐसा था नहीं थर्मामीटर। ओके, तो इससे काफी हेल्प मिली ये मेजर करने के लिए कि किसी के अगर बुखार है, फीवर है, तो वो कितना है, कितनी डिग्री सेल्सियस में है या फ़ारेनहाइट में है। उसमें 2 यूनिट्स रहती है। और इसके जो इन्वेंटर हैं वो कौन थे? गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट, ये शॉर्ट में लिख देता हूँ। ओके, तो फ़ारेनहाइट है, तो इसको शॉर्ट में ये भी कह देते हैं कि द इन्वेंटर ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर वाज फ़ारेनहाइट। ओके, या डेनियल फ़ारेनहाइट। ओके, जरूरी नहीं है अपन फुल नेम इसका लर्न करें, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं डेनियल फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट आता है अपने स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के जो इन्वेंटर है वो कौन थे? रैन लैनिल। ओके, और ये किस लिए यूज होता है? ये अपनी जो हार्ट बीट है उसे मेजर करने के लिए, या फिर अपने जो चेस्ट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, ओके, ब्रीदिंग में, तो इस सबको इससे मेजर किया जाता है। ये होता है स्टेथोस्कोप। सांस लेने में प्रॉब्लम है, ओके, तो वो इससे मेजर किया जाता है। तो इससे क्या होता है? डॉक्टर इज एबल टू लिसन द साउंड ऑफ और हार्ट एंड ब्रीदिंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। और इसके इन्वेंटर कौन थे?
फ्रेंच साइंटिस्ट है कोई, रैंड, नेम जरूर इसका लर्न करना, RAENE, ओके, रेने, ये इनके इन्वेंटर थे और ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। गुड मॉर्निंग सेजल, यू आर लेट। नेक्स्ट आता है अपने माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स है बिल्कुल जो इनको नॉर्मल अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उनको देखने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ओके, और इनके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे, जकारिया जानसिन। इन्होंने 1590 के अंदर इसको इन्वेंट किया था और इसी की वजह से जो डिफरेंट टाइप्स के जो जर्म्स हैं उनको देखना पॉसिबल हो पाया, जिससे कि डिफरेंट डिजीजेज होती थी तो उन जर्म्स की पहचान की गई, आइडेंटिफाई किया गया उनको, और उसी की वजह से फिर उन जर्म्स को कैसे रोक सकते हैं, कैसे उनको खत्म किया जा सकता है। ओके, हार्मफुल जर्म्स कौन कौन से हैं और हार्मफुल बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं या अपने लिए जो बेनिफिशियल है, ओके, वो कौन कौन से हैं, तो इनकी पहचान की जाने लगी और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, जर्म्स, उनको मारने के लिए जो मेडिसिन या वैक्सीन है वो डेवलप की गई। ओके, तो इसके इन्वेंटर कौन थे, वो आज द इन्वेंटर ऑफ द माइक्रोस्कोप, द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप वाज जकारिया जैनसिन। ओके, उन्होंने कब इसको डेवलप किया, 1590। ओके, क्लियर है, या आपको ऑरली लर्न होनी चाहिए, रिपीट कर रहा हूँ, ये सेकंड टाइम कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करते डेली, वो कभी करते हैं कभी नहीं करते, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में, मशीन दैट कैन लुक इनसाइड योर बॉडी। आपने देखा होगा कई बार अपने जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है या और भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर एक्सरे करता है। ओके, इसके अलावा स्कैनर्स भी यूज होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, सीटी स्कैन होता है या MRI। तो ये सभी एक सिस्टम है जिसकी वजह से अपनी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है, उनकी इमेज देखी जाती है, पिक्चर्स देखी जाती है, उनके बारे में देखा जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके द्वारा उसे देखकर आइडेंटिफाई करके फिर जो है वो इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, MRI की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, और CAT की बताई थी कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ओके, नेक्स्ट अपने क्या था, आप देखें एंशिएंट टाइम में क्या था, जो सर्जरी की जाती थी यानी कि जो ऑपरेशन किए जाते थे तो उसमें जो पेशेंट रहता है उसे बेहोश करने की इतनी टेक्निक डेवलप नहीं थी। ओके, बहुत ज्यादा वो प्रेजेंट की जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, तो उस समय सर्जरी करते टाइम जो पेशेंट रहता है था उसके काफी पेन होता था, काफी उसको पेनफुल कंडीशन से निकलना पड़ता था, तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती थी और जो प्रॉपर जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो नहीं हो पाता। ओके, अब डॉक्टर्स ने ये कोशिश की कि कुछ तरह इस तरह से कोई चीज बनाई जाए जिससे कि जो है उसको पेशेंट को क्या नहीं हो, पेन नहीं हो, तो उसी तो फिर जो सर्जर्स थे या जो डॉक्टर्स थे उन्होंने एक मेडिसिन बनाई, क्लोरोफॉर्म। ओके, तो सबसे पहले उनको फिर बाद में क्या दी जाने लगी, क्लोरोफॉर्म दी जाने लगी। तो क्लोरोफॉर्म की वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि लगभग बेहोश जैसा हो जाता है। ठीक है, और उससे पेन का कोई भी एहसास नहीं होता, कोई भी उसको फील नहीं होता।
ओके स्टूडेंट्स, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, अब आ गया आवाज? रिलेशन में बच्चों दिखाई दे रहा है? ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्योंकि आज थोड़ा मौसम सही नहीं है यहाँ पर। ओके, यस। तो नेक्स्ट अपना कौन सा था? ये हो गया अपना सर्जरी। तो उस समय उनको क्या दिया जाता था? क्लोरोफॉर्म दिया जाता है उसके, और फिर उसके बाद में एनेस्थीसिया दिया जाने लगा। तो डॉक्टर्स गिव द पेशेंट एनेस्थीसिया टू मेक देम अनकॉन्शियस। तो डॉक्टर्स जो है वो पेनिसिलिन देते हैं, एंथेसिलिन देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। ओके, और फिर उसके बाद में उसकी जो भी सर्जरी की जाती है वो इजीली हो जाती है। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट अपना एंटीबायोटिक्स। ओके, अब देखिए एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स ये हमने एंटीबायोटिक्स भी हमने कर लिया था। डॉक्टर्स रहते हैं जब अपनी जो डिजीज हो जाती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, किसी भी तरह की हो सकती है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक पेनिसिलिन डिस्कवर की थी, जिसे एक मेडिसिन डिस्कवर की थी जिसे पेनिसिलिन कहा जाने लगा। तो ये पेनिसिलिन किस यूज में आती थी? जो बैक्टीरिया रहते हैं उसके ग्रोथ को ये क्या करती थी? रोकती थी। ओके, तो प्रेजेंट में भी डिफरेंट टाइप्स की इस तरह की जो ड्रग्स है वो दी जाती है, जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन वगैरह दे दिए जाते हैं, ओके, या टेबलेट्स जो भी दी जाती है, तो उससे क्या होता है, ये अपनी बॉडी में एंटीबायोटिक के रूप में वर्क करते हैं और जर्म्स की ग्रोथ होने से या बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से ये रोकते हैं। नेक्स्ट वैक्सीनेशन। बच्चों को आपने देखा होगा टीकाकरण होता है ना, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है या प्राइवेट है या आंगनबाड़ी में है, तो बच्चों को पोलियो की इनकी ड्रॉप्स भी पिलाई जाती हैं। तो ये वैक्सीन रहती है, और इनका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है, such antibiotic cure disease but vaccines prevent disease from occurring, कि ये बीमारी होने से ही रोक देती है, यानी कि बीमारी से पहले ही ये वैक्सीन दे दी जाती है। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा कि उसको ड्रॉप्स पहले ही पिला दी जाती है, ओके, पोलियो की इनकी। तो उससे क्या होता है, उससे रिलेटेड जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो बॉडी में अपने डेवलप ही नहीं हो पाते। अगर वो डेवलप होते भी हैं तो उस वैक्सीन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जैसे टिटनेस की है, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस की, तो इनको रोकने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट होता है अपने स्मॉल पॉक्स। जैसा आपने देखा होगा, माता निकल जाती है, छोटी माता निकल जाती है, तो वो भी ऐसे बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो उसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन बनाई थी वो किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। ओके, 1796 में इन्होंने उसको यूज में किया और किसी बच्चे को दिया, तो उन्होंने देखा कि काउ पॉक्स के जर्म से वो बनी हुई थी, तो उसके फिर स्मॉल पॉक्स से नहीं हुई। तो इस तरह से इसका भी आविष्कार हुआ। जैसे इसके अलावा पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस है, कोलेरा है, टिटनेस है, इन सब के लिए वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक अपने कौन सा था? पाश्चराइजेशन। ओके, तो पाश्चराइजेशन क्या होता है कि पाश्चराइजेशन एक प्रोसेस रहता है, जैसे जो कि मेन रूप से जो मिल्क रहता है उसमें जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसकी ग्रोथ को ये रोकता है। इसमें क्या किया जाता है, जो मिल्क होता है उसको बॉईल किया जाता है और फिर तुरंत उसको क्या किया जाता है, कोल्ड कर लिया जाता है। ओके, तो उससे उसमें जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन। ओके, मिल्क और वाटर कैन बी बॉइल्ड टू किल जर्म्स। वाटर में भी होता है, तो जब उसको बॉईल करते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, प्रिवेंट डिजीज, और बीमारी से बचाया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स बाय बॉइलिंग फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। तो जो प्रोसेस रहता है जर्म्स को मारना और तुरंत उसको क्या करना, कूल कर देना, स्पेशली इन मिल्क, इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन। ओके, यस। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स। ये आज का टॉपिक है, इसे अभी हम क्लियर कर लेते हैं। जोसेफ लिस्टर एक सर्जन, ये एक जोसेफ लिस्टर क्या थे, एक सर्जन थे। लिव्ड अबाउट 150 इयर्स अगो,
150 years ago इनका जन्म हुआ होगा, ये उस समय थे. At that time, surgery was new and many patients died after operations due to infection of the wounds. अब उस समय क्या था कि टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी जैसे पेशेंट में. तो जैसे ऑपरेशन वगैरह किया जाता था तो के बाद में भी बहुत सारे जो पेशेंट होते थे वो मर जाते थे, क्योंकि उनके घाव तो रहते थे वो क्या हो जाते थे, इन्फेक्टेड हो जाते थे, और उनकी वजह से उनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी. Lizer tried several methods of controlling the infection without success. तो इन्होंने लीजर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि किस तरह से ये जो घाव होते हैं तो इनको इन्फेक्शन से रोका जाए, बट उनको सक्सेस नहीं मिली. देखिए, देन ही स्टडी पास्चर्स फाइंडिंग अबाउट जर्म्स. तो उन्होंने जो लुई पास्चर था, पास्चराइजेशन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो उनकी जो केस स्टडी थी उनको उन्होंने अच्छी तरह पढ़ा, अच्छी तरह उनको समझा. Then he realized that germs caused the infection in the wounds and started looking for a method to kill the germ. तो उन्होंने देखा कि जो जर्म्स है वो इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं, जो घाव होता है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको बढ़ाता है, तो उनको कैसे मारा जा सकता है इसके बारे में उन्होंने स्टडी की. He tried a chemical called carbolic acid. तो उन्होंने केमिकल लिया कार्बोलिक एसिड, उससे उन्होंने उन जर्म्स को रोकने की एंड इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश की. He sprayed carbolic acid in the air, washed his hands, instruments and then patient skin with it before performing an operation. तो उन्होंने क्या किया, उसको एयर में स्प्रे किया, अपने हाथों पर लगाए, इंस्ट्रूमेंट्स पे लगाए. ओके, कब, ऑपरेशन करने से पहले. ओके, the death due to the infection come down dramatically. तो उन्होंने देखा कि इस तरह से इसको यूज करने से जो पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद में जिनकी इन्फेक्शन से डेथ हो जाती थी तो उनमें काफी कमी आ गई. ओके, तो जोसेफ हैड डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीसेप्टिक, ए केमिकल दैट किल्स जर्म्स. तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहले एक इस तरह की चीज बनाई या केमिकल को यूज किया जिससे कि जो ऑपरेशन के टाइम पर होने वाले इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है. ओके, तो ये जो उन्होंने जो केमिकल यूज की थी उन्होंने इसको एंटीसेप्टिक कहा. ओके, तो इस तरह से फर्स्ट एंटीसेप्टिक डिस्कवर हो गई, और इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, जोसेफ लीजर. क्लियर है. नेक्स्ट आपका कीपिंग हेल्थी. जर्म्स कॉज सेवरल डिजीजेस, कि जर्म्स की वजह से काफी डिजीज होती है. मेनी डिजीजेस आर आल्सो कॉज्ड इफ यू डू नॉट ईट ए प्रॉपर डाइट. बहुत सारी डिजीज तो कैसे होती है, जब हम प्रॉपर डाइट नहीं करते. वी कैन रिमेन हेल्दी बाय फॉलोइंग सिंपल रूल्स व्हिच टेक केयर ऑफ दिस टू फैक्टर्स. तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं अगर हम कुछ चीजें फॉलो करें तो. ओके, कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं. ओके, अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं. इसमें 2 फैक्टर्स लिखे हैं बट इसमें 4. ओके, रूल्स व्हिच टेक केयर ऑफ दिस 2 फैक्टर्स. ईट गुड न्यूट्रिशियस फूड. हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स है. ओके, विटामिन सी, ये सभी क्या होने चाहिए, प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए. विच गिव्स द बॉडी ऑल द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स. और हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए, कि जिससे क्या हो, अपनी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिले. ओके, कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन. हमें आसपास भी क्या रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए. दिस प्रिवेंट द ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स. तो आसपास सफाई रखने से क्या होगा, जो जर्म्स वगैरह हैं तो उनसे बचा जा सकता है. उनकी जो ब्रीडिंग होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उनको फैलने से रोक सकते हैं. कीप योर बॉडी क्लीन बाय हैविंग ए बाथ विद सोप एंड वाटर एवरी डे. हमें अपनी बॉडी को साफ रखना चाहिए, हमें डेली बाथ लेना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए साबुन से, इनसे. ओके, साबुन और पानी से. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. हमें खाना खाने से पहले और आफ्टर ईटिंग.
और खाना खाने के बाद में भी अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 2 रूल्स बताए हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, गार्बेज ब्रीड जर्म्स। जो गार्बेज रहता है, गार्बेज में क्या होता है, जो कचरा वगैरह रहता है, गंदगी रहती है, उसमें हम क्या बोलते हैं, गार्बेज। तो इसमें जो जर्म्स होते हैं वो ब्रीड होते हैं, यानी कि उनकी संख्या बढ़ती है। एंड स्प्रेड जर्म्स और इंसेक्ट्स भी उसमें कचरे वगैरह में क्या होता है, गंदगी में ज्यादा फैल जाते हैं। Therefore always keep garbage covered। इसलिए जो भी गार्बेज है, जैसे आप अपने घर में डस्टबिन वगैरह रहता है, और भी कोई जैसे पानी जो है बाहर जाता है, तो वो भी एक जो वो रहता है, नाली वगैरह रहती है, तो वो कवर होनी चाहिए। उसके कवर होने से क्या होगा, उसमें जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं या जो जर्म्स है वो बाहर एयर में नहीं फैलेंगे। Therefore always keep garbage covered, dispose it from time to time। और उसे डिस्पोज करना चाहिए टाइम टू टाइम। एंड डू नॉट अलाउ इट टू एक्यूमुलेट, और उसको फैलने भी नहीं देना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें प्रॉपरली क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रॉपरली हमें क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से अपनी जो बॉडी है, तो बॉडी के जो भी डिफरेंट जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, एनर्जी मिलती है उनको। ओके, एक्सरसाइजिंग स्ट्रेंथन द बॉडी। अपनी बॉडी को एक्सरसाइज क्या बनाती है, मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। उससे अपने जो बैक्टीरियाज है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, अपनी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाते। ओके, तो उससे बहुत अपनों को हेल्प मिलती है। तो प्रॉपरली हमें क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए। एंड इट बिकम्स मोर कैपेबल फॉर फाइटिंग डिजीज। तो एक्सरसाइज करने से अपनी बॉडी में क्या होती है, एनर्जी आ जाती है। जो भी डिजीज होती है उससे फाइट करने में अपनी बॉडी है, बॉडी सेल्स जो भी रहती है वो स्ट्रांग हो जाती है, और फाइट करने में उनको आसानी रहती है। इजीली वो जो जर्म्स है, बैक्टीरियाज हैं, उनसे फाइट कर सकते हैं और अपनी बॉडी जो बीमार होने से बच सकती है। When you feel unwell, go to a doctor। जब भी आपको कुछ अनवेल हो, यानी कि अगर आपको बेटर फील नहीं हो रहा हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, और उनको जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है, जिस उनको जो परेशानी हो रही है हेल्थ से रिलेटेड, वो उनको बतानी चाहिए। द डॉक्टर विल फाइंड आउट व्हाट डिजीज। तो डॉक्टर फिर चेक करते हैं हमें। ओके, कार्बोलिक एसिड, ये एक एसिड ही रहता है। ओके, ये कार्बोलिक एसिड का मतलब कुछ भी नहीं होता, ये नेम होता है, जो कि जो एक केमिकल रहता है। ओके, और ये जो अपने जैसे आपने एंटीसेप्टिक जो नाम सुना होगा ना, तो उसमें ये यूज होता है। ओके, एंटीसेप्टिक इससे बनाई जाती है 90%। तो एक केमिकल, जो भी ड्रग्स अपन लेते हैं, ड्रग्स मीन्स क्या है, मेडिसिन जो भी लेते हैं वो सब केमिकल रहती है, जो भी एलोपैथी रहती है। ओके, आयुर्वेदिक नहीं, एलोपैथी। तो आयुर्वेदिक में भी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हो सकते हैं, बट अभी एलोपैथी की बात है, तो डिफरेंट टाइप्स की एलोपैथी में जो है, तो उसमें एंटीसेप्टिक यूज होती है, तो उसी में कार्बोलिक एसिड भी यूज होता है। ओके, नव्या, क्लियर है नव्या? यस। When you feel unwell, go to a doctor। The doctor will find out what diseases you are suffering from using some of the method you have read about in this chapter। Okay, you are suffering from using some of the method you have read about in this chapter। She or he will give you the proper medicine to cure। तो डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चेक करते हैं कि हम किस तरह से, कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं। डॉक्टर हमें, जैसे इस चैप्टर में हमने देखा कि माइक्रो ये आपके हैं थर्मामीटर यूज करता है, फीवर को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज करता है कि अपनी जो ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, हो सकता है वो अपना ब्लड करवाएं। ओके, तो ब्लड टेस्ट के लिए वो फिर ब्लड को चेक करते हैं, माइक्रोस्कोप से वो चेक करते हैं, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो जर्म्स हैं उनके बारे में उनको पता लगता है, वो उसकी स्टडी करते हैं।
तो उससे भी उनको पता लग जाता है कि ये डिजीज है इनके, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। या फिर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो हमने इस चैप्टर में देखा कि एक्सरे भी करवा सकता है स्कैनर से, या सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई। तो जैसा भी उनको लगता है प्रॉपर, वैसा वो हम क्या करते हैं, हमें सजेस्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है वो डिजीज को खत्म करने के लिए हमें मेडिसिन या वैक्सीन वगैरह देते हैं। नव्या प्रजापत क्लियर है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया। कार्बोलिक एसिड एंटीसेप्टिक में यूज की जाती है, यानी कि जो अपने घाव वगैरह हो जाते हैं तो उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज की जाती है। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर क्या हुआ, फिनिश हुआ। और इसमें एनी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी, इफ यू वांट टू एनी क्वेश्चन, आस्क मी एनी क्वेश्चन। कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा हो अभी पूछिए मुझे। कुछ पूछना है बच्चा? प्रियांशी हैप्पी बर्थडे बोलना पापा को मेरी तरफ से, ओके। किसी भी स्टूडेंट को है कुछ प्रॉब्लम, कुछ से आपको अभी डिस्कस करना हो, पूछना हो, एनी प्रॉब्लम? ओके, यस, एक्सरसाइजेज पेज नंबर 90। बच्चों अभी टाइम नहीं हुआ, हो गया क्या टाइम आपका? टाइमिंग का पता नहीं क्या आपको कितने बजे तक है? यस, देखिए एक्सरसाइज पेज नंबर 90। Mohan's mother feels his body is warm and wants to see if he has fever। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये आप फिल करोगे इसमें, ओके। क्लिनिकल थर्मामीटर लिखना है। थर्मामीटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ओके। लेबोरेटरी थर्मामीटर भी होता है, वो लेबोरेटरी में यूज होता है, तो आप इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर ही यूज करेंगे। तो आप इस चैप्टर अपना फिनिश हो गया। तो ये एक्सरसाइज है और एमसीक्यूज है, ये आप सेल्फ फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ओके।